So very formal good morning once again. Today we are going to cover the mangrove forest. Mangrove forest, why these are so special? Because in the picture also you can see the roots of the plants or the trees are visible over the ground, over the water even. ये एक स्पेशलिटी होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट की. Now let me explain about what the mangroves are, what are its uses, what is its importance. These are various kinds of trees up to medium height and shrubs that grow in saline coastal sediment habitats in the tropic and subtropics. ये ग्रोथ होती है इनकी ट्रॉपिकल एरिया एंड सब ट्रॉपिकल एरिया एंड द बेसिक कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड for the growth of mangroves is saline water, right? So that's the reason these trees or the forests grow near the coastal areas. With their roots submerged in water, they thrive in hot, muddy and salty conditions. So you can see in the pictures also that the roots are submerged in the water. They are also visible over the water also. So they normally survive in the hot, muddy water and the salty conditions. So ये fresh water में ये exist नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा इनको salty conditions चाहिए होती हैं, and that is the reason कि ये deltaic region या coastal areas में ही पाए जाते हैं. They are extremely important to our own well-being and to the health of the planet. अभी mangroves जो हैं, they are very important. How are they important? First of all, that they include a filtration system that keeps out much of the water. इनकी जो roots हैं वो इस ढंग से बनी हुई हैं कि ये एक तरह से फिल्टर का काम करती हैं, राइट? फिल्टर का काम करती हैं. जो सेडिमेंट्स रिवर्स लेकर आती हैं वो भी यहां पर आके फिल्टर हो जाते हैं, which at least improves the quality of water. It protects the environment. How does it protect the environment? It protects the coastline by acting as wave breaks. जो waves आती हैं, जो high waves आती हैं, वो इन trees से टकराती हैं और उनकी जो velocity है, that gets reduced. The velocity of the waves gets reduced, so they act as the wave breaks. They stabilize coastlines and serve as natural barriers or the protectors against huge storms, preserving the coastlines. Now they stabilize the lives of the coastlines. They are the protectors against huge storms. How does it protect against the huge storms? अब जो बहुत ज्यादा storm आते हैं, तूफान आता है, उसमें क्या होता है कि ये जो trees हैं, इनका upper part, you can see in the picture, upper part also you can see it's a bit a stronger one, right? Denser है, spreaded है and थोड़े strong है. तो जब हवाएं तेज चलती हैं तो they are easily able to bear the force of winds and hence prevents the higher destruction. ज्यादा destruction से ये बचाते हैं. They act as wind breaks. So, जैसे मैंने भी बताया कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो इन जो ट्रीज हैं, इनका जो अपर पार्ट है, ये उन हवाओं की वेलोसिटी को भी रोकता है, हवाओं की फोर्स को रोकता है, और एग्जैक्टली टोटली नहीं रोकता, हम कह सकते हैं रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो स्टॉर्म से अदरवाइज डिस्ट्रक्शन होना होता है, दैट गेट्स लोअर डाउन. प्रॉपर्टी का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, कैजुअलिटीज हैं, these all are lowered down because of these trees. When you were there in class 8, one topic was there, the methods preventing the soil erosion, right? In that you had studied about the shelter belts. शेल्टर बेल्ट्स जो है वो कैसे सॉइल इरोजन को रोकती हैं कि बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हवाएं तेज चलती हैं तो वो हवाएं जो है वो पेड़ जो है उनको बियर कर लेते हैं, उसकी हवाओं के फोर्स को बियर कर लेते हैं और लोअर लेवल पे जो सॉइल है वो
It doesn't gets you can say move away with this winds. वो विंड से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है और ये जो पेड़ है वो हवाओं के फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं. Had these trees been not there, the soil would have been easily washed away or transported through the wind. That would have led to a greater level of soil erosion. Some more uses are there, that they retain, they concentrate, they recycle nutrients, also trap debris, sediments, excess nutrients, toxicants through their natural filtering process, and this improves the water quality of tidal rivers that drain through the mangroves. तो ये जो rivers इन होती हैं, तो it improves the quality of the rivers, right? So ये अपना एक नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, ये नेचुरल फिल्टर हो जाती हैं और जिसके कारण जो पानी है उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है, एंड दैट क्वालिटी एग्जैक्टली आई मीन it gets improved even, right? What else is the importance? They are the buffer zone between the land and the sea, right? Buffer zone between the land and the sea, how कि ये land और sea को connect करते हैं areas. These protect the soil from erosion. कैसे erosion को protect करते हैं? जैसे मैंने बताया कि जब हवाएं तेज चलती हैं तो upper part इनका जो protect कर लेता है, and when it is a flood, then the roots of these trees prevents, or you can say reduce the loss of the floods. You can see in the picture, center की picture है, you can see कि इसकी जो roots है वो कैसे फैली हुई है, right? How these are spread over a larger area. तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर फ्लड्स आते हैं या अगर बारिश तेज आती है तो ये जो मिट्टी है या जो सॉइल है वो इन रूट्स में अटक जाएगी और वो फ्लो नहीं होगी, रन ऑफ नहीं होगा उसका. तो उससे क्या है कि जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट हो जाता है. दे प्ले एन इनवैल्यूएबल रोल एज अ नेचर्स शील्ड अगेंस्ट साइक्लोन्स, ecological disasters, and as protector of shorelines, right? साइक्लोन से बचाते हैं, जो डिजास्टर्स है उससे भी एरियाज को बचाते हैं. जो कोस्टल एरियाज है दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट. दे आर अ ब्रीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड फॉर अ वेराइटी ऑफ मरीन एनिमल्स. आप अगर इसकी रूट्स को देखेंगे तो कुछ जो मरीन एनिमल्स हैं वो इनकी रूट्स में ये काफी आई मीन डेंसली लोकेटेड होती हैं ये. सो उनकी रूट्स में भी दे कैन ब्रीड. जो एम्फीबियंस हैं दे कैन ब्रीड ऑन द रूट्स विच आर विजिबल ओवर द ग्राउंड और ओवर द वाटर. अगर आप ये रूट्स देखेंगे और बीच में जो आप एरिया देख रहे हैं ना, जो ब्लैंक एरिया है थोड़ा सा, दैट इज अ मडी वाटर. वो भी पानी ही है, थोड़ा मडी है, जिसे हम दलदली इलाका भी कहते हैं. तो यहाँ पर एम्फीबियंस भी ब्रीड कर पाते हैं, जो मरीन एनिमल्स हैं वो भी ब्रीड कर लेते हैं. तो दिस इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर द एनिमल्स. ये जो मैंग्रोव ट्रीज या फॉरेस्ट है, दे आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द वेराइटी ऑफ मरीन एनिमल्स. And these forests, these are found in the areas of coasts influenced by tides. Mud and silt gets accumulated on such coasts. And these mangroves are the common varieties with roots of the plants submerged under the water. तो अब इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कुछ जो रूट्स हैं वो ऊपर विजिबल है, कुछ जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, right? After this I will just show you the map of India where the location of these mangrove forests, these are marked, right? The deltas of Gangas, Mahanadi, Krishna, Godavari, Kaveri, these are covered by such vegetation.
In the Ganga Brahmaputra Delta, Sundari trees are found which provide durable hard timber. यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं जिसे हम मैंग्रोव ट्रीज कहते हैं, these provide a very hard timber. फर्नीचर के भी काम आता है ये, और काफी हार्ड होती है लकड़ी इसकी. पाम कोकोनट, पाम और कोकोनट जो है बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत कॉमन है. और यहाँ का जो कोकोनट होता है, जो मैंग्रोव एरियाज का या कोस्टल एरियाज का जो कोकोनट होता है, क्वालिटी वाइज यू कैन से कि वर्ल्ड फेमस है, राइट. एंड ये जो है यहाँ की स्पेशलिटी भी है. इफ वी टॉक अबाउट द एनिमल्स और द वाइल्ड लाइफ हियर, ये जो एरिया है स्पेशली हम यहाँ पर अब बात करें, जब हम नॉर्मली मैंग्रोव ट्रीज या फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमारा सारा कंसंट्रेशन कहां पर होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ऊपर, राइट. ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, मेनी टाइम्स वी हैव स्टडीड दैट दिस इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, राइट. और इसी को सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है. और why it is called Sundarban Delta? Because in the mangrove forest of Ganga Brahmaputra basin, Sundari trees are found. वहां पे जो पेड़ पाए जाते हैं उनका नाम है, लोकल नेम जो है सुंदरी ट्रीज. तो सुंदरी ट्रीज के कारण ही उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है. और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है दैट इज ऑल्सो वेरी रिच. सुंदरबन डेल्टा के जो टाइगर्स हैं, विच आर कॉल्ड रॉयल बंगाल टाइगर्स, दीज टाइगर्स इट्स अ फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट. यहाँ के जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं. आप लोग क्रिकेट देखते हैं, आई थिंक एक क्रिकेट टीम भी है आईपीएल की, विच इज नेम्ड ऑन दिस रॉयल बंगाल टाइगर्स, isn't it? So क्योंकि यहाँ का जो रॉयल टाइगर है बहुत ज्यादा फेमस है. एंड बिसाइड्स these tigers many other animals are there, turtles, crocodiles, घड़ियाल्स होते हैं, alligators and snakes. These are also found in these forests, right. Not only the tiger but other animals भी है. शायद मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि जो टर्टल्स हैं वहां जो बंगाल में है जो लोग, वो उसको आई मीन दे कंज्यूम इट, दे ईट द टर्टल्स, एक तरह से उनके लिए फूड है. ऐसे वहां जो कोस्टल एरियाज होते हैं, यहाँ पर द पीपल आर बाउंड टू डिपेंड ऑन द सी फूड, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इन एरियाज में खेती नहीं हो सकती, फार्मिंग नहीं हो सकती है इन एरियाज में. So the people are bound to eat the seafood, right? तो सी फूड में वैरायटी ऑफ फिशेस जो हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं. और एज आई सेड कि स्पेशली बंगाल साइड में टर्टल्स जो हैं दे आर आल्सो कंज्यूम. लेकिन अब जो टर्टल्स हैं वो उन्हें एक तरह से एक एक्सटिंक्ट एनिमल जो है माना जा रहा है, एंड दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, राइट. सो ये जो है ये मैंग्रोव साइट्स हैं हमारी. यू कैन सी कि जितने भी एरियाज हैं लाइक मैंग्रोव ऑफ गुजरात, देन इज रत्नागिरी है ये एरिया, कर्नाटका का जो एरिया है वहां पर ये है ज्यादा. देन इज गोवा मैंग्रोव्स, देन इज कावेरी डेल्टाइक मैंग्रोव्स. मतलब आप ये इसमें ऑब्जर्व करें कि सारे के सारे जो है ये सारे कोस्टल एरियाज ही हैं, राइट. कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स, देन महानदी मैंग्रोव्स, देन द सुंदरबन मैंग्रोव्स, राइट. ये सारे के सारे मैंग्रोव्स हैं और ये सारे कोस्टल रीजन्स में ही है. जैसे मैंने बताया कि इट इज ओनली बिकॉज कि ये जो ट्रीज होते हैं दे रिक्वायर द सलाइन वाटर, राइट. दे रिक्वायर द सलाइन वाटर, तो उसी के कारण ये सारे इनकी जो लोकेशन है वो यहीं पर है, राइट. सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल.